So, hello everyone. This is Ifran Lee, Coordinator Event Conceptualization, IEEE AMU Student Branch. I would like to welcome our speaker, Bushra Tasneem ma'am, and every student present in Code Fiesta today. Before I take the pleasure of introducing our guest, let me give you a brief on why Code Fiesta. So, without a doubt, Python has emerged as one of the most exciting and important programming languages. It is used in machine learning, artificial intelligence, and what not. And it will definitely give you the cutting edge in technology and information you need. So, hope you'll take back something from this workshop. Introducing Bushra Tasneem ma'am. She is an alumni of Department of Computer Engineering, Jamia Millia Islamia. She is also a software engineer and a coding educator at Vedantu. Welcome to Aligarh Muslim University, ma'am, virtually. We are really obliged to have you here with us and thank you for your precious time. Without a further delay, I would like to hand over the platform to you. Over to you, ma'am. A very good morning to everyone. I hope I'm audible. A yes or Yes, no ma'am. will work. Yeah, totally fine. So it is my pleasure to be here, and I'll just try to keep this entire workshop precise and crisp, so that you learn the things and you are quite interested throughout the workshop, rather than making it a monotonous conversation or a monotonous workshop. I'll try to make it interactive, so that at the end of the day, after the workshop, there is something that you are taking back home, right? Also, like during the entire 1 hour, or maybe it's 1.5 hour something, I'll try to make it crisp. But whatever the entire duration is, in case you have any doubts, you are free to write in the chat box doubts regarding to what I'm explaining. Okay, fine. Anyone who is not able to understand English or something, you want me to speak in Hindi or something, if something like this, you can let me know. I'll try to speak both English and Hindi together. हेलो I don't think so. I haven't got any response. मैम आप So it will दोनों be लैंग्वेज great में if I बोलेंगे just तो ज़्यादा continue बढ़िया in रहेगा English, मैम right? दोनों में Yes, ma'am. Chalo, no ओके problem. मैम I'll speak in both the languages. Okay? Fine. So, like as Ifra introduced me, I am a 2021 pass out from Jamia Millia Islamia, Bachelor of Engineering Computer Science. Apart from that, I have joined the offers, right? One second. Yeah. So I have actually received, offers from Infosys, Tech Mahindra, Edureka, Larsen and Tubro Infotech this year, and I'll be joining them soon. Although the virtual onboarding has already started in the month of September, right? So I'll try to give as much knowledge as I can. Let's hope. I'll wait for your feedback at the end of the session. Okay. Is my screen visible? Yeah. So the agenda for the day is going to be something like this. I'll start with the introduction, followed by environment setup, and we are going to create a rock paper scissor game. I will be teaching what algorithm is, variables, talking about the random module that we have, coming to while loops, output and input in Python, control structures, operators, and if time permits, I'll definitely start with dictionary, that is the data structure that we have in Python, right? Moving ahead. And now, as a beginner, when the name Python comes in mind, the very first thing that comes is, like we're talking about the snake, or maybe the person who just gave this name was quite, a big fan of something like Discovery Channel. That's what we think. But it's not like that. When I talk about Python, this name has been taken from the complete Monty's Python Flying Circus. And this is a BBC, what to say? Uh, Basically, I'm just forgetting the name. I'm really sorry.
Yeah, it's basically a play that we have. So from there, this name has been taken. And Python was first released in the year 1991 by Guido van Ronson. Now, talking about why are we using Python, why not any other language? So Python is a high level language, means you can easily understand it. It's simple, राइट द लैंग्वेज इज सिमिलर टू इंग्लिश जैसे आप इंग्लिश में लिखते हो आप लिस्ट बना रहे हो आप लिस्ट बोलोगे आपको कुछ प्रिंट करना है यू विल राइट प्रिंट सिमिलरली जो इंग्लिश के वर्ड्स है सेम वर्ड्स हम पाइथन में भी यूज करते हैं इट्स ओपन सोर्स GUI like it's not only like you're just writing the scripts आप इस पे like buttons और ये सारी जितने भी graphical user interface है you can make that ये जावा की तरह इट इज ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड इट्स एन एक्सप्रेसिव लैंग्वेज और ये ओपन सोर्स है इसकी जो लाइब्रेरी है इट्स क्वाइट लार्ज एंड वी विल बी टॉकिंग अबाउट फ्यू ऑफ द मॉड्यूल्स इन टुडेज क्लास अभी के लिए इफ यू आर अप्लाइंग इन द मार्केट और समवेयर लाइक कंपनीज आर कमिंग टू योर कॉलेज और समथिंग पाइथन इज वन ऑफ द लैंग्वेज सबसे ज्यादा यूज हो रहा है एंड नाउ इट इज यू विल फाइंड ऑलमोस्ट सबके रेज्यूमे में पाइथन इज रिटन why not only because it is easy also because it is a powerful language so आज के टाइम पे Pinterest, Quora, Google, Spotify, YouTube, Dropbox, Netflix सारे Python यूज कर रहे हैं even Instagram, Instacart, Reddit सारे Python यूज कर रहे हैं so it is one of the language that is in demand at this moment and it will stay in demand for the few for many more upcoming years as well right now using Python, we can create many things like web and internet development, desktop पे applications बना रहे हो, software development, even you have frameworks like Django, Flask, you can use them and you can make games, web applications. You have many other things that you can make with the help of Python. So this is the reason why we are starting with Python. Now, I am sure like is there anyone जिसे Python install करना नहीं आता है? If it is there, I'll start with this environment setup. Anyone like that? Okay, I can't find any response, but no worries. So, I have just added a link here, https colon double slash, okay, Aisha Parveen, www.python.org. I'll just help you out. Give me a second. I have mentioned the website here in the PPT itself, and I'm also going to share my screen and show you what actually you have to do. Okay, so I have opened this website that I have www.python.org. You open this, you come to downloads, and here you have the option, download for Windows, and this is the latest one, Python 3.9.7. If you want, you can download this. या फिर जो compatible है मतलब सारे libraries के साथ में जो Python का version compatible है that is Python 3.8 तो आप 3.8.1 3.8.2 कुछ भी ले सकते हो okay I will not say कि आप latest download मत करो you can download the latest one also but जो अभी के टाइम पे सबसे ज्यादा compatible है with all the libraries that is Python 3.8 so I'll recommend कि आप वो install करो just click on it it will take like few seconds and it will start installing एक बार वो install हो जाता है just next and it's installed now इसके साथ में what I want to tell you like when you are installing this Python you also need an IDE integrated development environment जहां पर you will be writing the codes now for example मुझे पेंटिंग करनी है मैं ऐसा YouTube खोल के पेंट नहीं करूंगी right I need a specific application जहां पर I will be coding या फिर I want to watch a video मैं paint application नहीं open करूंगी I'll use media player or VLC something like that similarly Python के codes लिखने आप MS Word पे नहीं लिखोगे okay you need to have an IDE for that where आप code लिखोगे you will get the output then and there okay we have many online offline IDs बहुत सारा आप लोगों ने सुना होगा PyCharm के बारे में या फिर आप online Replit यूज कर रहे हो या फिर Google Colabs यूज कर रहे हो you have many अभी के टाइम पे एज अ फ्रेशर जब आप ये पाइथन इंस्टॉल करते हो बाय डिफॉल्ट अलोंग विथ व्हाइल यू आर इंस्टॉलिंग दिस पाइथन आपको आइडल मिलेगा IDLE दैट इज द बाय डिफॉल्ट जो आपको एक IDE मिल रहा है integrated development environment where you will be coding
I will be showing all these things, so nothing to worry. What I mean to say is, जब आप Python install कर रहे हो, आपको by default एक IDE मिलेगा. We will be using that. Okay? Now, coming back, I just need a second to share it again. Stop presenting. A tab. Okay. So this was the environment setup wala part. Now coming to, I can see most of you are from 2020 batch, means fresher. So अभी तक आप लोगों ने शायद C पढ़ा होगा कॉलेज में या फिर C++ शुरू होगा, if I'm not sure. या फिर 12th class में either you might have studied C or C++, something like this. How many of you all are aware of the C, Java and all? Okay, most of you are aware. Okay, great. You are studying Python. Fine. Good. Okay, children, no need to raise your hands. You can directly write in the chat box. I'll be seeing that. Okay, जब आप C पे लिख रहे होते हो, तो initial classes में you will see that you have to write hash include student.h, hash include conio.h, int main, और फिर main के अंदर printf hello world. आप semicolon दे सकते हो, single line है तो. If you want, you can skip that. आप इतना कुछ लिखोगे and then the output will be hello world. And if I'm talking about Java, so I have made a class demo. इसके अंदर में you have again the main function. So public static void main string arguments, and then you are printing system.out.println hello world, और तब ये print हो रहा है. Now, if you pay attention, दोनों cases में यहाँ पे /n is written. तो /n मतलब हम explicitly बता रहे हैं कि now you have to go to the next line. Python के केस में कुछ नहीं है. Just have a look. It's one single line print. We have opened the parenthesis. Double quotes है hello world लिख दिया. That's it. जो काम इतना like 1 2 3 4 5 lines में मैंने किया है C में, और उतना काम you can see Java में. Hello. Okay, fine. So in case of Python, just a single line and that is going to work. Children, if I'm going little fast, you can let me know. I'll just lower my or slow down my space. तो like it is simple. और as a programmer when you're writing, और also आप जब software project management पढ़ोगे, तो आप lines of code आप count करोगे, you will have some formulas to count that. और जितने कम line of code, that means your project is much better. Right? The lesser, ये lesser मतलब ये नहीं, functionalities remove कर दिया, functionalities has to be there, और code less होने चाहिए. Right? तो ये हमारा Python से achieve होता है. So along with its simplicity, it is also powerful. This is the reason why both beginners as well as जो experts होते, they like using Python. Now, मैं एक typical Indian style नहीं use करूंगी कि first I will explain the theory part and then we will come to the practical part. I'm not going to use that. So, मैं starting से बोल रही हूँ, I'm going to start with this rock paper scissor game. Okay, we are going to make this. और school के time पे बहुत खेला है, when teacher has gone out or something. We have played this game. कोई ऐसा है जिसने नहीं खेला ये game? I don't think so. राइट चलो सबने खेला ग्रेट ठीक है तो ये रॉक पेपर सीजर गेम हम बनाने वाले हैं एंड इट इज रियली वेरी सिंपल हम जितना मैंने एजेंडा में बताया हम वही सारी चीजें यूज करेंगे एंड वी विल मेक इट इन केस कोई अगर भूल गया हो लॉकडाउन में मे बी आई एम जस्ट शेयरिंग दीज रूल्स क्या होता है सपोजिंग इफ यू हैव टेकन आउट सीजर scissor is going to beat the paper scissor से paper cut हो गया if you have taken out paper paper is going to beat the rock because paper will fly if it is the rock rock is going to beat the scissor my camera is on am I visible No, ma'am. I was addressing the audience. okay fine yeah children you can switch on your camera okay fine so these are the rules और ये सारे rules हमें बताना पड़ेगा while we will be writing the program ऐसे नहीं मैं टाइम वेस्ट करने के लिए ये बता रही हूँ so we will be writing the codes accordingly so only if the rule is clear you will be able to write the complete code properly अब ये जो हम गेम बनाएंगे the rules of the game is going to be simple तीन ऑप्शन होंगे you will have three options rock paper and scissor my opponent is going to choose one opponent is nothing but the computer so computer कोई एक choose करेगा now I will be choosing one
Based on the choices, if it is paper and rock, paper will win. Rock and scissor, rock will win. Scissor and paper, scissor will win. अगर दोनों का same है, that will be a tie. Now, अब इस game पे winner क्या होगा? Like who will be the winner? So this will go, 10 rounds होगा. 10 round में जिसने भी ज्यादा किया, he or she wins the game. Okay? So this will be the rule और इसे हम implement करेंगे. Before we start, you already know sequence क्या होता है. Sequence means something in the correct order, right? That is called a sequence. Now, when we have instructions in a correct order, that is called an algorithm. Okay? जब मेरे पास में बहुत सारे इंस्ट्रक्शंस है और वो सारे इंस्ट्रक्शंस मैं बिल्कुल सही सही स्टेप बाय स्टेप ऑर्डर में दे रही हूँ, that is called an algorithm. So algorithm is nothing but a set of instructions in the correct order to do a task. Now, this can be in English, Hindi, Marathi, Gujarati, किसी में भी हो सकता है. Because मुझे बस इंस्ट्रक्शन समझाने में करेक्ट ऑर्डर में समझाऊंगी. So even like you are doing data structures or something और आपको आएगा pop push कैसे करोगे, फर्स्ट ईयर में इनिशियल सेशन में आपका यही आएगा. तो आपको ना एल्गोरिदम अगर लिखना होगा, so you will be writing that in English. या फिर आप कोड यूज करोगे, you will be using pseudo codes. Algorithm can be in any language, बस instructions in the correct order है, that's it. अब हम देखने वाले क्या इंस्ट्रक्शंस होगा, क्या एल्गोरिदम होगा मेरे इस प्रोग्राम का while I will be creating this game. So सबसे पहले जब ये गेम स्टार्ट नहीं हुआ है, my score will be 0. So the very first thing that I will be doing कि जो मैं जहां पे स्कोर अपना मेंटेन करूंगी, that will be 0. ये मेरा गेम 10 राउंड्स तक चलना चाहिए. So मैं राउंड को भी मैं मेंटेन करूंगी, that will again be 0. और मैंने बोला ये गेम 10 राउंड्स तक चलेगा. Something will happen again and again. That's a loop. So मैं एक लूप चलाऊंगी, उस लूप के अंदर बार बार क्या होगा, मैं यूजर से पूछूंगी अपना चॉइस बताओ, कंप्यूटर से पूछूंगी, दोनों के चॉइस को कंपेयर करूंगी, उसके बेसिस पे किसी का स्कोर इंक्रीज होगा, किसी का सेम रहेगा. आई विल शो व्हाट द करंट स्कोर इज एंड आई विल इंक्रीमेंट द राउंड कि ओके एक राउंड हो गया, चलो अब सेकंड राउंड पे आ गए, थर्ड राउंड पे आ गए. ये राउंड तब तक चलेगा जब तक मेरे 10 राउंड्स नहीं हो जाते हैं. वंस इट इज डन, आई विल कंपेयर द स्कोर्स एंड प्रिंट द फाइनल रिजल्ट. ये हो गया हमारा एल्गोरिदम. अब इसी एल्गोरिदम को हमें प्रोग्रामिंग लैंग्वेज में लिखना है, वो हो गया प्रोग्राम. ये अभी मैंने इंग्लिश में लिखा है, सो इट इज एन एल्गोरिदम. द मोमेंट आई चेंज द लैंग्वेज, इसे पाइथन में कर दिया या किसी भी प्रोग्रामिंग लैंग्वेज में कर दिया, इट बिकम्स अ प्रोग्राम. ओके, सो एल्गोरिदम और प्रोग्राम में सिर्फ एक ही डिफरेंस है, लैंग्वेज का. दैट्स इट. यहां तक इज इट क्लियर? एनीवन हैविंग एनी डाउट इन दिस थिंग? अगर है प्लीज लेट मी नो. Ma'am, if you could just briefly explain the algorithm part once again, it would be helpful. Okay, fine. So what I said, जैसे सपोजिंग मुझे कुछ रूल्स बताना. सपोजिंग मैं तुम्हें सिखा रही हूँ पिज्जा कैसे बनाना है, ठीक है? तो आई विल से टेक अ पिज्जा बेस, ओके, चीज लेकर आओ. आई एम नॉट अ गुड कुक एट ऑल, कुछ भी नहीं आता एक्सेप्ट मेकिंग टी. ओके, तो आगे पीछे स्टेप्स हो जाएंगे मेरे, डोंट वरी. ओके, तो सपोजिंग आई टोल्ड यू ब्रिंग अ पिज्जा बेस और उसके बाद ऐड चीज ही ऐड करते हैं या समथिंग समथिंग, मायोनीज ऐड द, वो सॉस ऐड करो, ओके, ऐड द चिकन एंड ऑल और उसके ऊपर ग्रेटेड चीज डाल दो. उसके बाद कीप इट इन द ओवन आफ्टर 20 मिनट्स, 30 मिनट्स, गोल्डन ब्राउन हो गया, निकाल लो. मैंने क्या बोला? सारे इंस्ट्रक्शंस बोले, करेक्ट ऑर्डर में बोला. ये नहीं बोले कि पहले तुम पिज्जा में ओवन में डाल दो, फिर निकाल के चीज डालना, फिर से ओवन में डाल दो, फिर उसके ऊपर सॉस डालना. मैंने ऐसा नहीं बोला. ऑल माई इंस्ट्रक्शंस वर इन द करेक्ट ऑर्डर. ओके, इंस्ट्रक्शंस थे क्या क्या करना है, करेक्ट ऑर्डर में थे. इसे एल्गोरिदम बोलते हैं, ठीक है? इंस्ट्रक्शंस इन द करेक्ट ऑर्डर, वो एल्गोरिदम है. क्लियर है साद, मोहम्मद? Yes, ma'am. Yes, ma'am. अगर नहीं है यू कैन लेट मी नो, ठीक है? बेसिकली इंस्ट्रक्शंस इन द करेक्ट ऑर्डर उसे बोलते हैं एल्गोरिदम. आप लोग अपने दोस्त को बोलते भी होगे ना कि अगर जामिया पहुंचना है, यू विल से बटला हाउस क्रॉस करो, फिर इधर आना, ई रिक्शा लेना और बोलना गेट नंबर 7 पे उतार दो. यू आर फ्रॉम एएमयू, आई हैव जस्ट बीन टू एएमयू वंस. ओके, सो द वे यू गिव, यू आप इंस्ट्रक्शन दे रहे हो करेक्ट ऑर्डर में, वो एल्गोरिदम आप बोल रहे हो. ओके, नाउ आई सेड कि हम यूजर के स्कोर को कहीं रखेंगे, राउंड्स को कहीं रखेंगे. कहाँ रखेंगे? दैट कॉन्सेप्ट इज कॉल्ड वेरिएबल्स.
Okay, that concept is called variables. So वेरिएबल क्या हो गया, एक कंटेनर जिसमें मैं कुछ रख रही हूँ. फॉर एग्जाम्पल आई हैव माई वाटर बॉटल हियर, कंटेनर है, इसके अंदर आई एम स्टोरिंग वाटर. सो दिस इज अ वेरिएबल. ओके, अब देखो ये पानी अगर मैं पी लूंगी, पानी विल फिनिश, दिस वाटर विल फिनिश. मैं बॉटल नहीं चेंज करूंगी, मैं फिर से इसी कंटेनर में मैं फिर से वाटर फिल कर लूंगी. Again I'll drink, the value will keep on changing. This is what happens in case of variables. Variable एक container है जिसमें you store something, and the thing that you are storing that can change. Supposing अभी मैंने साद से पूछा कि ओके मैंने उसे दिया नेम इज इक्वल टू ब्लैंक दे दिया, साद वहां पे साद फिल करेगा. मैं साकिब से पूछूंगी, साकिब वहां पे साकिब फिल करेगा. मैं रिया से पूछूंगी, रिया वहां पे रिया फिल करेगी. कंटेनर वही है, कंटेनर नेम है, बट द वैल्यूज आर गोइंग टू बी डिफरेंट. ओके, so variable is nothing but a container in which you store things. Okay, अब things that I am storing, they can be of different types. जैसे अगर मैं name पूछ रही हूँ तो आप मुझे कुछ alphabets mixed वाला बताओगे, है ना, like I will say Bushra, they are all alphabets. अगर मैं age पूछूंगी, someone will say 16, 17, 18, I'll say 23, something like this. तो number is coming, right? तो container में मैं number add कर रही हूँ. So that container can hold anything. Even वो एक list भी hold कर सकता है. It can even hold boolean variables like boolean values like true, false, yes, no. वो ये भी store कर सकता है. Variables, just a container in which you are storing something. Ali Afnan, can you just brief me the same thing? What is a variable? I can't hear you. Yari, you are not audible. नहीं नहीं नहीं, कुछ भी आवाज नहीं आ रही. साकिब, you only brief. मैं बाकी लोग का नाम I think I'll just have to take. Sakib, you can only brief. Um, What do we mean by variables? a variable is something that stores in it. Like we can store a list, we can store boolean values, we can store anything. कुछ भी. ग्रेट, ठीक है, सही है. ओके, नाउ अभी तो मैंने बोला कि ठीक है हम वेरिएबल्स बनाएंगे जिसके अंदर हम स्टोर किया करेंगे. अपार्ट फ्रॉम दिस, वी नीड टू स्टडी बिफोर. ओके, नो प्रॉब्लम, फाइन. बिफोर आई जस्ट कंटिन्यू, वी नीड टू स्टडी अबाउट मॉड्यूल्स एज वेल. मॉड्यूल्स क्या होता है? Now just imagine, I have my wardrobe, और like I will have many stuffs, right? कॉलेज जाने के अलग कपड़े होंगे, पार्टी में जाने के अलग कपड़े होंगे, घर पे पहनने के I'll have different clothes. ऐसे I'll have varieties. विंटर के अलग क्लोथिंग होंगे. तो मैं सबको एक साथ तो रखूंगी नहीं, राइट? आई विल कीप देम सेपरेट. सबका जगह बनाऊंगी कि हाँ अगर मुझे हिजाब लेने मैं यहाँ से निकालूंगी, मुझे अगर कॉलेज के ड्रेसेस चाहिए, आई विल जस्ट कीप सेपरेट एरियाज फॉर सेपरेट थिंग्स. विंटर के क्लोथिंग को मैं समर की क्लोथिंग में मिक्स नहीं करूंगी, right? Same thing we have in case of module as well, in case of Python as well, in case of any programming language. What happens, वहां पर हम एक तरह का कोड को एक जगह रखते हैं, ठीक है? जैसे मेरे जितने पार्टी वेयर्स होंगे मैं सारे पार्टी वेयर्स को एक साथ रखूंगी. मैं उस टाइम पे हल्ला नहीं करूंगी अम्मी ये चीज कहाँ पर है निकाल के दीजिए. आई विल हैव, मतलब मेरे पास बिल्कुल क्लैरिटी रहेगा कौन सी चीज कहाँ पर है. मैं वही वाला ओपन करूंगी एंड आई विल गेट द स्टफ. सिमिलरली इन केस ऑफ पाइथन वी हैव अ मॉड्यूल, वो लॉजिकली ऑर्गेनाइज करता है पाइथन कोड को. एक तरह का कोड को वो एक साथ ग्रुप करता है. सो व्हाट विल हैपन, मेरे लिए इजी होगा कि अच्छा अगर मुझे रैंडम कुछ चाहिए तो मैं रैंडम मॉड्यूल में जाऊंगी, कुछ भी रैंडम उठाना, उसके पास में बहुत सारे रैंडम के फंक्शंस होंगे. मुझे अगर पार्कर पेन खरीदना है, मैं क्या करूंगी? किराने की शॉप पे तो जाऊंगी नहीं. आई विल गो टू द स्टेशनरी, मुझे पता है इसके पास में मिल जाएगा, और बहुत सारे पेन्स होंगे. आई विल हैव वेराइटीज देयर. सेम होता है मॉड्यूल में भी. वंस आई वेंट टू द रैंडम मॉड्यूल, मुझे वहां पर बहुत सारे रैंडम के फंक्शंस एंड ऑल बहुत कुछ मिल जाएगा. ओके, चाहे मुझे वो रैंडम इंटीजर लेना है या फिर मुझे स्ट्रिंग को रैंडमली स्प्लिट करना है, वॉट एवर आई हैव टू डू. मगर एक मॉड्यूल को यूज करने के लिए यू नीड टू इम्पोर्ट इट. ओके, एंड व्हेन यू आर इम्पोर्टिंग समथिंग, वो आपका पहला लाइन पे आएगा. ओके, तो इम्पोर्ट मॉड्यूल का नाम. यहां तक क्लियर है? importing and then the module name. So in this case हम क्या करने वाले, we are going to import the random module. Okay, uh, uh, uh. 1 second, I was just presenting my screen, right? Stop sharing. Okay,
One second, I'm sharing it again because I want to use the pen actually. A tab, presentation. Yeah, here it is. Okay, I think it's clear till here. Moving on to the next slide that I have. After module, I said we are going to use this random module. Random module. So यहाँ पर we are using the random module. As I said, you are going to write this, in the very first line that your import and then random. Now, अब अगर I want to use this module, what I am going to do, I am going to write random. मतलब मैंने module का नाम लिखा dot. अब module के अंदर I'll have many functions. Like one of the function that I have is rand int, means random integer. So I'll write rand int. मेरे केस में I have three options: rock, paper and scissor. मैं बोलूंगी 1 से लेके 3 तक कोई भी जनरेट कर दो. सो कभी 1 जनरेट होगा, कभी 2, कभी 3. ऐसा नहीं है कि मैं 1 और 3 को एक्सक्लूड कर रही हूँ. 1 और 3 को इंक्लूड करके इट विल जनरेट अ रैंडम नंबर. लाइक आप लूडो खेल रहे होते हो तो बेसिकली उसमें क्या होता है, 1 से लेके 6 के बीच में जनरेट होता है. ऐसा नहीं है कि मैं लिटिल फिंगर से प्रेस करूंगी बार बार 6 आएगा. इट नेवर हैपेंस लाइक दैट. ओके, सो वो अपने आप रैंडमली हमने बता रखा. रैंडम color is not visible. Fine. I'll just try to choose a different color from here. I think this will work. 1 comma 6. Okay, so what will happen, it will generate any random number 1 2 3 4 5 6, 1 or 6 को include करते हुए. ठीक है, we are going to use this. Now just tell me children, अभी तक मैंने जितना डिस्कस किया, should I write the code for this या फिर मैं explain कर दूं, या मैं इतना का कोड लिखूं and then we should continue. Come on, suggestions are welcome. Ma'am, back there a few minutes ago, I was asking about the algorithm that you wrote for the for particularly this program, the rock paper scissors one. So, if you could go back to that again, or maybe just proceed with the code, and we will try to understand along with it. Fine. I'll do one thing. I'll continue with the code, right? Sure. So let me share my screen. I'll have to share my entire. Can I? I'll just use Replit. It will be better because screen share करने में it will be easy. So Replit is again, an online IDE that I have, that we actually have. It's not exclusively for me. So I'll just click on start coding. Okay. Got it. Fine. So the very first thing that I will be doing is I will be importing. I think font size ठीक है. If it is not proper, I'll just increase it once more. Okay. So I'm going to import the random module. सबसे पहला काम क्यों import कर रहे हैं? Because computer के case में मैं randomly choose करने वाली हूँ. Right, the values. So I have imported random. Next line. I am going to make a variable round number. Now, one more thing that I wanted to tell is, whenever you are writing the name for these variables, जब आप variables का नाम दे रहे होते हो, तो आप ऐसे कुछ भी नाम नहीं दे दोगे, right? आप ऐसा कुछ number में नाम नहीं दोगे. You have some rules that you have to follow while you are naming. Like वो number से शुरू नहीं होना चाहिए. It can start with an underscore, alphabets, कुछ भी. It cannot have, special symbols. आप ये सब नहीं use कर सकते हो. Even जो आपके पास में reserved words है, like आप if, else, break, इस तरह से नाम नहीं दोगे, right? You're not going to use such kind of words. Now,
तो सिमिलरली लाइक दिस इज द रीजन व्हाई आई एम जस्ट राइटिंग इट लाइक दिस. आप अल्फाबेट से शुरू कर सकते हो, अंडरस्कोर से शुरू कर सकते हो. सो राउंड नंबर एट दिस मोमेंट पहला राउंड शुरू होने वाला है, सो आई एम जस्ट गोइंग टू राइट 1 ओवर हियर. ठीक है, दैट्स इट. कोई सेमीकोलन कुछ नहीं देना है. Now I am also going to declare some variables कि मेरा score के लिए. So I am just creating my score. So right now it's 0. Okay. And I'll make one for computer score. So मैं क्या कर रही हूँ यहाँ पे? Let me explain this. What I'm doing here. Round 1 is a variable. एक container है. उसके अंदर I am keeping 1. Okay. हमेशा right से assignment will happen. अब पता है इसे हम ऐसे नॉर्मल इंडियन लैंग्वेज में वी कॉल दिस इक्वल टू, बट दिस इज नॉट इक्वल टू, इट इज असाइनमेंट ऑपरेटर. आई एम कीपिंग समथिंग. सो राउंड नंबर में मैंने 1 रख दिया, माई स्कोर मैंने 0 रख दिया, कंप्यूटर स्कोर मैंने 0 रख दिया. ओके तो मैंने अभी 3 वेरिएबल्स बनाए हैं, ऑल 3 में मैंने अलग अलग वैल्यूज रखे हैं. और मैं टाई का भी वैल्यू मेंटेन करूंगी. टाई ऑल्सो आई एम कीपिंग इट 0. ओके आई हैव डन टिल हियर. यहां तक वी हैव डन. नाउ वी आर गोइंग टू सी अब हमें क्या करना है. हमें अब ये गेम 10 बार चलाना है, राइट. वी हैव टू मेक दिस गेम रन फॉर 10 टाइम्स. वो कैसे करेंगे? फॉर दैट अगेन वी आर गोइंग टू लर्न समथिंग. सो कमिंग बैक टू दिस टैब अगेन. चिल्ड्रन यहां तक क्लियर है? जहां तक मैंने भी बताया अभी तक हमने कुछ नहीं किया है, सिर्फ रैंडम मॉड्यूल को इंपोर्ट किया है. राउंड नंबर. व्हाट हैपेंड? Continue teaching. We are writing code on our IDE. Okay, great, fine. Chalo, moving on. So something happening again and again, that is loops. Now, so loops are again control structures that are used to repeat a given selection of code. School में teacher ने हमसे बहुत loops लिखवाए थे, right? I will not talk in the class. आप ये चीज 10 बार 100 बार लिखना पड़ता था, right? So like वो loops हो रहा था कि हम बार बार same चीज लिख रहे हैं. Now loops are actually of 2 types. One is where we are aware कि मुझे ये चीज कितनी बार लिखनी है. I am aware of that. Like जब क्लास में आप बात कर रहे होते थे, या हिंदी नोटबुक नहीं लेकर आए, या फिर आर्ट एंड क्राफ्ट क्लास में बहुत होता था ड्राइंग बुक नहीं लेकर आए, so that was the most important subject. So like stay or write or sit down out of the class and you just kneel down and write 100 times. I'll bring my art book in the school. So वहां पर we were aware कि मुझे वो चीज 100 times लिखनी है. Okay, this is the first thing. Second thing is you have to keep on writing जब तक आपका bell ring नहीं हो जाए. You are aware of the condition here, right? कि bell के ringing तक आपको लिखते रहना है. या फिर if I just take a simple example here, supposing maths का कोई question है या trigonometry का कोई question है, so either your tuition teacher will tell you कि देखो ये question 3 बार लिखना है या 5 बार practice करो, समझ में आ जाएगा. तो टीचर ने स्पेसिफाई कर दिया डू दिस 5 times. या फिर टीचर विल से प्रैक्टिस दिस अगेन एंड अगेन जब तक आपके समझ में नहीं आ जाए. इट कैन हैपन आपको 2 बार में समझ में आए या फिर 20 बार में समझ में आए. इट कैन हैपन, लाइक वो आप पर है. आप हर दोनों ही केसेस में आप रिपीट ही कर रहे हो, राइट? पर एक बार में यू आर अवेयर कि कितने टाइम्स आपको करना है, दूसरे बार में यू आर नॉट अवेयर कितने टाइम्स करना है. यू जस्ट नो द कंडीशन. ये कंडीशन जैसे फुलफिल हो गया, अब मेरे समझ में आ गया है, आप स्टॉप कर दोगे. जब तक मेरे समझ में नहीं आया है मैं करती रहूंगी. जैसे ये कंडीशन फॉल्स हो गया, मेरे समझ में तो अब आ गया, आई विल स्टॉप. ओके सो अब इन्हीं दोनों का वी हैव डिफरेंट नेम्स. दिस इज नथिंग बट द फॉर लूप, दिस इज नथिंग बट द व्हाइल लूप. ओके When you are aware आपको कितनी बार रन करनी है कोई चीज को, आप क्या यूज करोगे? फॉर लूप यूज करोगे. एंड व्हेन यू आर नॉट अवेयर आप व्हाइल लूप यूज करोगे. ऐसा नहीं है कि अगर मैंने बोल दिया कि आपको नहीं मालूम कितनी बार करनी है तो आप वहां पे व्हाइल लूप यूज करोगे. फॉर नहीं यूज कर सकते हो. ओके जैसे यहाँ पर अभी जब आई विल बी कोडिंग, मैं फॉर लूप नहीं यूज करूंगी, मैं व्हाइल लूप यूज करूंगी. ओके वाई मैं क्यों यूज करूंगी यहाँ पे व्हाइल लूप? बिकॉज अगर मुझे आपको फॉर लूप पढ़ाना होगा, मुझे आपको रेंज भी समझाना पड़ेगा एंड आई हैव लिमिटेड टाइम. ओके दिस इज द रीजन. अदरवाइज आप कुछ भी यूज कर सकते हो. जहां पर आपको पता है कितनी टाइम्स यूज करनी है वहां पर आप फॉर लूप यूज करोगे. जहां पर आपको कंडीशन पता है वहां पर यू आर गोइंग टू यूज व्हाइल लूप. बट वी कैन हम इसे इंटर एक्सचेंज भी कर सकते हैं. एंड आई विल शो यू कि कैसे मुझे पता है मुझे ये गेम 10 बार चलानी है, फिर भी मैं वहां पर व्हाइल लूप यूज करूंगी. यहां तक क्लियर?
Chalo, let us see what happens in this while loop. What happens? Someone is speaking something. Okay, chalo. So talking about this while loop where I have the condition. तो यहाँ पर भी I have this condition ना कि मेरा game 10 बार चलना चाहिए. I have this condition. So what will happen? जब तक मेरा condition true है, उसके लूप में जो भी मैंने बोला वो चलता रहेगा चलता रहेगा चलता रहेगा. जैसे ये कंडीशन फॉल्स हो गया, द वाइल लूप भी पूरा का पूरा टर्मिनेट कर जाएगा. इट विल फिनिश, वो वाइल लूप नहीं चलेगा फिर. ओके मतलब जब तक मेरे एग्जाम्स की डेट नहीं आ जाती तब तक मैं प्रिपेयर करती रहूंगी, और आ जाएंगे तब मैं क्यों प्रिपेयर करूंगी. वंस इट्स ओवर आई एम नॉट गोइंग टू प्रिपेयर. सेम हमारा वाइल लूप है. एक बार वो फॉल्स हो गया फिर वो नहीं चलेगा. वाइल लूप वो खत्म हो गया, आप उसके नेक्स्ट लाइन पे आ जाओगे, रेस्ट ऑफ द कोड पर आप आ जाओगे. I'll just take a small example here. We have counter. Counter की value is, I can just share this tab. Yeah, I think my screen is visible. So what I am going to do, I am going to take a counter. Counter की value मैंने रखी है 1. काउंटर की वैल्यू है 1. क्यों? बिकॉज मुझे वो लूप चलाना है ना, मुझे ध्यान में रखना होगा कि एक खता खत्म हो गया, सेकंड पे आ गए, मैं थर्ड पे आ गई या फोर्थ पे आ गई. अब मैं क्या करूंगी, यहां पर आई एम गोइंग टू यूज अ वाइल लूप. वाइल, look at the syntax. मैंने while लिखा and then we will have a condition here. तो मेरा condition क्या है कि जब तक मेरे काउंटर की वैल्यू is less than or equal to 5, मतलब मैं 1 से शुरू करूंगी, मुझे 5 तक जाना है. तो 1 5 से छोटा है, हाँ कुछ काम होना चाहिए. 2 3 4 5 बस, इसके आगे नहीं जाना है. ओके मैं चाह रही हूं कि समथिंग शुड हैपन 5 टाइम्स. सो दिस इज व्हाट आई एम गोइंग टू राइट. इनिशियलाइज किया 1 से, काउंटर की वैल्यू 1, अब मैं 1 से बिगिन करने वाली हूँ. ओके कब तक जाना चाहिए, 5 तक जाना चाहिए. एंड आफ्टर राइटिंग दिस यू पुट दिस कॉलन. एंड पाइथन में इंडेंटेशन बहुत मैटर करता है, बहुत नहीं मतलब मैटर करता ही करता है. इट इज अ नेसेसिटी. तो व्हाट विल हैपन, जैसे आप ये कॉलन प्रेस करोगे, इंडेंटेशन मेंटेन होगा. वॉट एवर यू राइट वो इसके अंदर दिखाना शुरू होगा. Okay, so for example, if I just print over here, print, I open the brackets and I write hello and I close it. So you know what will happen? पहली बार what will happen, let me take a different color here. मेरे counter की value 1 है. Okay, counter की value 1 है. So what will happen, मेरा program next step पर आएगा and it will check. Is 1 less than or equal to 5? True, condition is true. तभी ये loop work करेगा. तो इसने print कर दिया hello. Then what will happen, बोला अच्छा और तो कुछ है नहीं. Then what will happen, ये लूप चलता रहेगा चलता रहेगा. अब ये काउंटर की वैल्यू चेंज कैसे होगी, आई विल हैव टू राइट द कोड फॉर दैट, बिकॉज अगले टाइम अगेन काउंटर की वैल्यू 1 है, ये तो हमेशा 1 रहेगा. आई नीड टू चेंज दिस. सो इसी के अंदर इन द लास्ट लाइन आई विल राइट काउंटर इज इक्वल टू, आई एम जस्ट राइटिंग इट लाइक दिस, काउंटर प्लस 1. और जो लोग कोडिंग पहले से कर रहे हैं, दे आर ऑलरेडी अवेयर कि यू कैन ऑल्सो राइट इट लाइक दिस, काउंटर प्लस इक्वल्स 1. दोनों का मीनिंग सेम है. ओके काउंटर इज इक्वल टू काउंटर प्लस 1 लिखूं या फिर मैं लिखूं काउंटर प्लस इक्वल 1, दोनों सेम है. सो व्हाट विल हैपन, इसने हेलो प्रिंट किया, फिर इधर आया, बोला अच्छा काउंटर की वैल्यू में एक ऐड कर दो. सो नाउ काउंटर की वैल्यू हो गई 2. अभी भी 2 इज लेस देन 5, यस कंडीशन ट्रू है. फिर से हेलो प्रिंट हो जाएगा. फिर उसने काउंटर की वैल्यू इंक्रीज कर दी, इट इज 3 नाउ. So 3 is also less than equal to 5. Yes, condition is true again. Again hello print हो गया. फिर बोल रहा अच्छा काउंटर को फिर से इंक्रीज करो. दिस टाइम द वैल्यू इज 4. 4 इज अगेन लेस देन इक्वल टू 5. कंडीशन अभी भी ट्रू है. सो अगेन ये हेलो प्रिंट हो गया. फिर काउंटर की वैल्यू मैंने इंक्रीज कर दी 5. अब देखो 5 लेस तो नहीं है, बट इट इज इक्वल टू 5. कंडीशन अभी भी ट्रू है. सो आई एम गोइंग टू राइट हेलो अगेन. फिर इंक्रीज हो गया. नाउ द वैल्यू इज 6. Is 6 less than equal to 5? No, condition is false. तो ये लूप नहीं चलेगा. सपोजिंग इस लूप के बाद मैंने यहाँ पे लिखा था प्रिंट बाय, तो क्या होगा, अब ये चीज प्रिंट होगा बाय. इसका मतलब अब मैं लूप से बाहर आ गई हूँ. ओके सो व्हाट आई मेंट टू से इज कि आपका जब तक कंडीशन ट्रू है, कोड वाइल लूप के अंदर की सारी चीजें विल रन. द मोमेंट ये कंडीशन बिकम फॉल्स, आप उस लूप से बाहर आ जाओगे. आई होप यहां तक इट इज क्लियर टू एवरीवन.
So let me share this tab now and I am going to write the code for this part. कि अब इस गेम पे मैंने क्या बोला है कि मेरा ये गेम कब तक चलेगा, 10 rounds तक चलेगा. So I will write the same thing. While my round number, मैं round number पे maintain कर रही हूँ अपना round. So while my round number is less than or equal to 10, the game should work. तो मैंने प्रेस किया, अपने आप indentation is being maintained. So I have written the condition here. यहाँ तक क्लियर? अगर आपको ये गेम 5 राउंड्स तक करना है, यू कैन जस्ट राइट 5 here. चलो मैं इसे छोटा कर देती हूँ, 5 राउंड्स तक रखती हूँ. ओके, नाउ मूविंग ऑन. यहां तक भी हो गया. कमिंग टू आउटपुट एंड इनपुट इन पाइथन. So when I talk about output in Python, what happens? You use the print. Just write print, open the parenthesis. Parenthesis के बीच में you will have these double inverted commas, और इसमें आपको जो लिखना है hello, you can write hello. Even if you are giving single inverted commas, that will also work. But why हम ये single inverted commas नहीं use करते? Can anyone tell me? मतलब those who are studying Python, I was thinking किसी ने यहाँ पे लिखा था अपना नाम, फरानाज. Can anyone tell me कि डबल कोट्स भी यूज कर सकते हैं, सिंगल कोट्स भी यूज कर सकते हैं, लेकिन हम डबल कोट्स ही क्यों यूज कर रहे हैं? कोई बात नहीं. Okay, so have a look. We want the word to be read as a string. We want string में आप यहाँ पे कुछ भी डबल कोट भी यूज कर सकते हो, इन्वर्टेड कॉमास भी यूज कर सकते हो. Yeah, we can use. It is standard. ठीक है. ओके, द मेन रीजन क्या है? इंग्लिश में आपने पॉजिटिव नाउन्स पढ़ा होगा या फिर अपोस्ट्रोफी का यूज पढ़ा होगा, राइट? सपोजिंग मुझे प्रिंट करना है, ओके, PRINT प्रिंट, डोंट शाउट प्रिंट करना है, कंट्रोल आई कैन नॉट, या अगर मुझे डोंट शाउट लिखना है तो मैं क्या लिखूंगी? DON''T and I will write shout. ये मैं बंद करूंगी. Now what will happen? The computer is going to get confused कि ये करना क्या चाह रही है. यहाँ पे ओपन की, यहाँ पे क्लोज करी, फिर यहाँ पे क्लोज करी. So it's going to give error. ठीक है? So just to avoid that हम क्या करेंगे? डबल कोट्स यूज करेंगे. ओके, So what will happen? मैं जब डबल कोड यूज कर रही हूँ, वो समझ जाएगा कि अच्छा डबल कोड्स यहाँ से शुरू हो रहा है, यहाँ पे एंड हो रहा है, ये पूरी चीजें एक चीज है. So it will print don't shout. Otherwise it's going to get confused कि ये मतलब इन्वर्टेड कॉमा शुरू हुआ, बीच में खत्म हो गया, फिर से दे दिया, what is it? Now एक क्वेश्चन आया होगा दिमाग में, ऐसा भी तो हो सकता है कि ये डबल कोड्स हमारे सेंटेंस के बीच में आए. फॉर एग्जाम्पल वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन टोल्ड दैट डबल कोड्स में लिखा है this pandemic is going to last for 10 more years, supposing. Okay, I hope it doesn't happen. So what will happen यहाँ पर? What we do when we're talking about multi-line, आप triple quotes देते हो. इसके अंदर आपने जो लिखनी है लिखो. Okay, I'll just write it more properly. So the thing is, either you can use single inverted commas when you have small characters हैं या फिर छोटे एक दो words है तो single inverted commas use कर लो. But when you have a sentence, double quotes use करो. And when you have multi lines, वहां पर what you write? You write the print command. 3 बार ये आप quotes देते हो, जितना कुछ लिखना है लिखो, और फिर 3 बार you close the double quotes. Supposing you have a poem and all, if you wanted one below the other, you can use this. Okay? Or by default, it is going to take you to a new line. So आपको ये /n and all नहीं लिखना है. What you write in case of C and in Java and all. Or endl, ये सब कुछ नहीं लिखना है. Talking about input. Input means to take things. Supposing मैंने पूछा, how old are you? Okay? So, I actually want an answer from you. अब ये आंसर मुझे तब तक नहीं आएगा जब तक I am not writing this input command. So what will happen? This input command is going to take value. Okay, इसका काम ही है यूजर से वैल्यू लेना. तो what will happen? जैसे हमारा the program will have the input, मेरा प्रोग्राम का एग्जीक्यूशन रुक जाएगा. वो वेट करेगा, नहीं पहले आंसर दो फिर मैं नेक्स्ट लाइन पे जाऊंगा या जाऊंगी, whatever. Right? मतलब अगर मेरे प्रोग्राम में इनपुट है तो इट विल वेट फॉर द यूजर टू गिव द इनपुट. नाउ सपोजिंग मैंने पूछा हाउ ओल्ड आर यू,
तो like I told I am 23. Yeah, I said 23. अब आप बोलोगे ये 23 तो क्या है, ये इट्स एन इंटीजर, राइट? ये तो एक इंटीजर है. बट पाइथन के केस में क्या होता है, अगर आप इनपुट कमांड से कुछ भी ले रहे हो, उसे स्ट्रिंग माना जाता है. इट इज कंसिडर्ड एज अ स्ट्रिंग. ये मैं पूछू लाइक it can be anything, like supposing what's your weight, supposing, and I said I am like I am not actually, I'm just writing something 115 kgs or something. अब ये क्या हो गया, पॉइंट आ गया. आप ये नहीं बोलोगे दिस इज अ फ्लोटिंग पॉइंट नंबर, नहीं, ये है आई नो, बट पाइथन विल नॉट कंसिडर इट. वो इसे स्ट्रिंग समझेगा. एनीथिंग जो आप इनपुट कमांड से ले रहे हो बाय डिफॉल्ट वो स्ट्रिंग है. तो अगर आपको वापस से इसे फ्लोट में चेंज करना है या इंटीजर में चेंज करना है, यू विल बी डूइंग टाइप कास्टिंग फॉर दैट. ओके, टाइप कास्टिंग कैसे करते हैं, आई थिंक या आई विल बी लेटिंग यू नो. ठीक है, तो चलो वापस से आते हैं, लेट अस कंटिन्यू विद दिस थिंग. तो हमने राउंड नंबर पूछा था, राउंड नंबर बताया है एक्चुअली. तो व्हाट आई विल डू, जब तक मेरा राउंड 5 तक नहीं पहुंच जाता है, एवरी टाइम व्हाट आई एम गोइंग टू डू, पहली बात तो आई विल जस्ट यूज सम वाइट स्पेसेस. मैंने एम्प्टी प्रिंट लिखा, मतलब एक लाइन ऊपर में लीव हो गया. जो आप HTML में BR टैग यूज करते हो, व्हाट इट डज, सेम थिंग हमारा प्रिंट यहाँ पर करेगा. नाउ आई वांट टू प्रिंट समथिंग, सो सी आई हैव रिटन द प्रिंट कमांड, putting double quotes. Whatever I write inside the double quotes will get printed as it is. So यहाँ पर मैं लिख रही हूँ round. Okay, I have written this. Now I also want to print this round number, कि अगर round 1 चल रहा है वो लिखा हुआ है round 1, round 2, it should come. Round मैंने कहाँ स्टोर कर रखा है, in this variable round number. Now in order to print a variable, मतलब पता है डबल कोट्स में आप कुछ भी लिखोगे ना, आम इमली वॉट एवर यू राइट, वो वैसे ही लिखा जाएगा. तो अगर मैं इस डबल कोट्स के अंदर लिख दूं ना ये राउंड अंडरस्कोर नंबर, तो ये मुझे 1 या 2 नहीं लिख कर देगा, ये राउंड अंडरस्कोर नंबर लिख कर देगा. So if I have to print a variable, what we do, double quotes के बाहर give a comma and then write the variable name, round number. So round as it is print होगा, उसके बाद में जो भी आपका राउंड नंबर के अंदर वैल्यू है, 1 है 1 प्रिंट होगा, 2 है 2 प्रिंट होगा, एंड सो ऑन. ऑल्सो अब मुझे क्या प्रिंट करना है, अगर यहां तक किसी को डाउट है प्लीज आस्क मी. ओके, अब मुझे तीनों मेन्यू देने हैं, लाइक द फर्स्ट मेन्यू इज रॉक. ओके, आई विल गो टू द सेकंड वन नाउ, print double quotes. The second wala will be paper. So ये as it is print होगा, 1 paper, 2 1 rock, 2 paper, and then the third one will be scissor. CISSOR. Okay, यहां तक it is done. अब मुझे यूजर से पूछना है कि तुम अपना चॉइस बताओ, तुमको क्या, मतलब तुम्हें क्या लेना है इसमें से. यूजर से मैं पूछूंगी, हाउ विल आई आस्क, बताओ. इफ आई वांट एन आंसर, व्हिच कमांड एम आई गोइंग टू यूज? Using input function. यूजिंग इनपुट फंक्शन. ग्रेट, मतलब यूजर लेना है तो मैं इनपुट फंक्शन यूज करने वाली हूँ. ठीक है, गुड फरा, टाइपकास्टिंग ग्रेट. ठीक है, तो अब मैं क्या करूंगी, इनपुट फंक्शन यूज करूंगी. वेयर डिड इट गो, या यूजर से जब मैं उसका आंसर लूंगी तो मैं उसे कहीं ना कहीं तो रखूंगी. तो मैं क्या करूंगी, मैं एक वेरिएबल बनाऊंगी. ये सी की तरह नहीं है कि आपको वेरिएबल ऊपर में बनाना है, समथिंग ऐसा नहीं है. आपको जहां मन कर रहा है यूज करने का वहीं पे वेरिएबल बना सकते हो. तो मैं एक वेरिएबल यहां बना रही हूँ, माई चॉइस. इसके अंदर क्या आएगा, जो भी यूजर चूज कर रहा है. नाउ हैव अ लुक, मैंने यूजर से आंसर पूछा, इनपुट कमांड लिखा, इनपुट. अब इसके अंदर मैं मैसेज लिख रही हूँ, उसे क्या समझ में आएगा, मुझे क्या देना है, नाम पूछ रहा जा रहा है या चॉइस पूछा जा रहा है, क्या पूछा जा रहा है. तो मैंने इनपुट कमांड लिखा. अब इनपुट के अंदर आई एम गोइंग टू टाइप द मैसेज. दिस इज टोटली ऑप्शनल. सो आई विल से एंटर योर चॉइस. तो व्हाट विल हैपन, एंटर योर चॉइस लिखा हुआ आएगा. फिर आप जो भी लिखोगे, 1 लिखोगे, 2 लिखोगे, 3 लिखोगे, जो भी लिखोगे, ये इनपुट कमांड क्या करेगा, उसे उठाएगा आपके वेरिएबल में डाल देगा. दिस इज व्हाट इज हैपनिंग. यू हैव द वेरिएबल, यू हैव द वैल्यू. तो ये जो पूरा है जिसे मैंने हाईलाइट किया है, दिस इज नथिंग बट इट इज गिविंग मी अ वैल्यू. ओके, सो व्हाट विल हैपन, एंटर योर चॉइस प्रिंट होगा. मैं कुछ आंसर दूंगी, 1 2 3 जो भी दूंगी,
वो कहाँ रखाएगा? इन द वेरिएबल माई चॉइस। ओके, अच्छा मैं चाह रही थी इसके बाद भी एक मैं खाली स्पेस दूं जस्ट फॉर प्रेजेंटेशन, ओके, जस्ट टू मेक द थिंग लुक मोर बेटर। चलो, ये तो मैंने अपना चॉइस ले लिया। व्हाट अबाउट द कंप्यूटर्स चॉइस? तो अब मैं सी चॉइस करके लिखूंगी। आई एम मेकिंग अ वेरिएबल फॉर द कंप्यूटर। कंप्यूटर की चॉइस के लिए, अब कंप्यूटर से तो मैं पूछूंगी नहीं कि टेल मी योर चॉइस, मैं रैंडम मॉड्यूल यूज करूंगी एंड आई हैव टोल्ड हाउ टू यूज द रैंडम मॉड्यूल। तो मैं पहले मॉड्यूल का नाम मैंने लिखा रैंडम। इस मॉड्यूल के अंदर जब आप किसी चीज के अंदर एक्सेस कर रहे होते हो आप डॉट यूज करते हो। आप ये जावा में भी यूज करोगे एंड एट मेनी अदर प्लेसेस। कैन यू प्लीज एक्सप्लेन स्टेप नंबर 10? होल्ड ऑन, स्टेप नंबर 10। ये एक नॉर्मल प्रिंट है। मुझे ना मतलब अगर मैं लाइन बाय लाइन लिख रही, जब आप एग्जाम दे रहे होते हो आपके 2 पैराग्राफ्स है, तो आप क्या करते हो? एक लाइन बीच में छोड़ते हो ना, या फिर आपको आंसर नहीं आ रहा, आप क्या करते हो? 2 लाइन लिखते हो, फिर एक लाइन पैराग्राफ छोड़ते हो, लाइन, फिर नेक्स्ट पैराग्राफ लिखते हो, यू लीव अ लाइन। दैट इज व्हाट आई हैव डन जस्ट टू मेक द थिंग्स लुक बेटर, दैट्स इट। ओके, you can type, if you want to ask something you can definitely type. Okay, fine. So what I have done, मैंने एक empty print लिखा है। empty print मतलब वो एक line leave कर देगा, empty line, वो मतलब presentation में matter करेगा। Okay, that's it. Otherwise सब एक दूसरे से चिपके हुए रहेंगे and मेरे खुद समझ में नहीं आएगा what is there. So just to make the code more readable, I have left an empty print. तो वो एक empty line leave कर देगा। Okay, now what I said, computer से मुझे choice लेना, तो मैंने module का नाम लिखा। Now module has got many functions. So one of the function that we are going to use is rand int. Okay, random integer. तो अब मैं क्या बोलूंगी कि तुम यूज कर लो 1 से लेकर 3 तक, कुछ भी जनरेट करके मुझे देते रहो। ठीक है, अब यूजर को कैसे समझ में आएगा कंप्यूटर ने क्या लिया? तो यूजर की समझाने के लिए मैं यहां पर प्रिंट करूंगी। क्या प्रिंट करूंगी? कंप्यूटर चोज। ओके, कंप्यूटर ने क्या चूज किया? एंड आई विल प्रिंट द वेरिएबल सी चॉइस, बिकॉज सी चॉइस में कंप्यूटर जो भी चूज कर रहा है वो सी चॉइस कंप्यूटर चॉइस में जा रहा है। सो आई जस्ट प्रिंट दिस वेरिएबल सी अंडरस्कोर चॉइस। नाउ वेरिएबल्स आर केस सेंसिटिव। आप ऐसा नहीं यहाँ पे स्मॉल सी लिखा, आप यहाँ कैपिटल सी लिखोगे और वो समझ जाएगा, इट विल नॉट हैपन। ओके ओके, नाउ अगर सपोजिंग मैं अपने आप को बिल गेट्स से कंपेयर करूं, तो इट विल बी अ बिग बेवकूफी ऑन माय पार्ट, बिकॉज हम दोनों सेम लेवल पे है नहीं, राइट? व्हाट वी डू, हम सेम चीजों में कंपेयर करते हैं, राइट? आई कैन नॉट कंपेयर टू डिफरेंट थिंग्स, ये कभी पॉसिबल नहीं है। मैं ये बता दूंगी कि अच्छा इनमें सिमिलैरिटीज ये है और डिफरेंसेस ये है, बट आई कैन नॉट कंपेयर। ओके, ह्यूमंस को और एनिमल्स को आई कैन नॉट कंपेयर। सिमिलरली यहाँ पर इफ यू सी व्हाट इज हैपनिंग, कंप्यूटर का जो चॉइस है वो एक इंटीजर है, राइट? पर मेरा जो चॉइस है दैट इज अ स्ट्रिंग। क्यों? इनपुट कमांड से आप कुछ भी ले रहे हो, इट इज अ स्ट्रिंग। तो अब मैं इसे कैसे चेंज करूं, मैं इसे इंटीजर कैसे बनाऊं? सो आई सेड वी विल बी टाइप कास्टिंग, चेंजिंग द टाइप, राइट? स्ट्रिंग या स्ट्रिंग से मैं इसे इंटीजर बनाऊंगी। हाउ विल आई डू दैट? इस पूरे चीज को आई विल कीप इट इनसाइड इंट। मैं पहले तो एक ब्रैकेट दे दूंगी स्टार्टिंग में और एंड में, ओके, और सबसे बाहर में इंट लिख दिया। तो इट इज समथिंग लाइक मैंने इंट फंक्शन यूज किया, इंट ब्रैकेट ओपन किया, उसके अंदर जो भी लिखोगे वो इंट बन जाएगा। क्या किया मैंने? व्हाट आई हैव डन, इफ आई जस्ट कम बैक हियर, शेयर दिस टैब, व्हाट आई डिड हियर, मैंने इंट फंक्शन यूज किया। अब इसके अंदर मैं क्या लिख रही हूं? इनपुट एंटर चॉइस। ये पूरा मुझे कोई नंबर दे रहा है, 3 2 कुछ भी दे रहा है, तो ये एक नंबर दे रहा है, मैं इस नंबर को यहां रख रही हूँ। तो व्हाट इज हैपनिंग, ये 3 जो था या 2 जो था ये एज अ स्ट्रिंग कंसिडर हो रहा था, बट अब मैंने इसे इंटीजर बना दिया। लाइक आप बहुत यूज करोगे, आपको कोई अगर चीज है लाइक यू हैव अ स्पेशल लिस्ट और समथिंग, और आपको उसे लिस्ट में टाइप कास्ट करना है, कीप इट इनसाइड लिस्ट, वो लिस्ट बन जाएगा। कोई चीज है आपको उसे फ्लोट में चेंज करना है,
तो जो भी चीज है उसे ब्रैकेट में रखो एंड जस्ट राइट फ्लोट, वो फ्लोट में चेंज हो जाएगा. दिस इज कॉल्ड टाइप कास्टिंग. मीन्स यू आर कास्टिंग और यू आर चेंजिंग द टाइप. ठीक है. तो द सेम थिंग आई एम डूइंग हियर. मैंने क्या किया, इस पूरे चीज को यू कैन सी एक इंट के अंदर, एक ब्रैकेट दिया इंट मेथड के अंदर, आई हैव केप्ट इट. दैट्स इट. आई थिंक यहां तक क्लियर है एवरीवन. नाउ अब इसके आगे हमें क्या करना है, वी हैव टू Ma'am, कम. या ma'am, in the enter your choice input function, the user या will enter either rock or paper or scissor. नंबर. सो मैं यहाँ पे एक्सप्लिसिटली लिख सकती हूँ, एंटर योर चॉइस, ओके, बिटवीन 1 2 3. ठीक है. Okay, and the input function reads by default in string form, and in order to convert it to the integer form, we have used typecasting. एग्जैक्टली. ठीक है. आप यहाँ पे कुछ Okay. भी लिखोगे वो उसे स्ट्रिंग ही लेगा. ठीक है. और अगर हमने क्यों चेंज किया, बिकॉज अगर ये स्ट्रिंग रहेगा ना तो मैं स्ट्रिंग को इंटीजर से कंपेयर नहीं कर पाऊंगी. ओके. इसलिए हमें टाइपकास्ट करना पड़ा. नाउ कमिंग बैक टू द सेम थिंग अगेन हियर. अब इसके आगे वी हैव टू स्टडी फ्यू मोर स्टेप्स. Okay, coming to control structures that we have. Now, for example, you know, I want to take some decisions. Every day हम अपने life में बहुत सारे decisions लेते हैं. Which dress to wear, या फिर I have gone to a restaurant, what to buy. है ना, ये सारे decisions ले रहे होते हैं. If it is raining, तो क्या करे? If you know I have my exam, what to do? And many a times we have backup plans also, right? Screen share ended. Oh, hold on. Presentation 43. Okay. So what I said, many a times we have some backup plans also. जब मेरे पास कोई backup plan नहीं है, मेरे पास only one condition है. Okay. If something has to happen, if it is raining, okay. If and I have the condition it is raining, so you know what I will do? I will go out and play. I will go out and play. मेरे पास बस एक ही condition, अगर बारिश हो रही मैं ये करूंगा. That's it. होता है ना, if I become rich, like you know, I think if I become rich, I'll ये बैटरी वाले जितने होते हैं मैं इनको बैन करा दूं. I just have you know like एक मेरे पास डिसीजन है कि अगर ऐसा होगा तो मैं ये करूंगी. अगर ये कंडीशन ट्रू है तो, और नहीं है तो मैं नहीं कर सकती कुछ भी. राइट. नाउ सपोजिंग आई हैव टू ऑप्शंस. नाउ मेरे पास दो ऑप्शंस हैं. सो इफ एक कंडीशन है, इफ इट इज रेनिंग, व्हाट आई विल डू, आई विल गो आउट एंड प्ले. और मेरे पास में एक बैकअप प्लान भी है. Else, you know, I'll just sleep. So when you have only one condition, आप if use करोगे, if statement. When you have two conditions, ऐसा है तो ये करेंगे, नहीं तो ये. That is the if else. मतलब अगर if successful नहीं हुआ तो else में ही करेंगे. अगर मान लो मेरा engineering में नहीं हुआ तो फिर, या medical में नहीं हुआ तो फिर ये करेंगे. Like you have the option. Engineering में नहीं हुआ तो फिर वही commerce लेकर पढ़ेंगे. Something, it can be anything. Right? So when you have two options with you, you use the if else. Sometimes what happens, you have multiple options, बहुत सारे backup plan होते हैं. ठीक है. वहां पर what happens, let me use this tab, share this tab. Yeah. So what happens, for example, let me take, if you know students are absent. Okay. Someone is writing something. Ma'am, I had a doubt. Are variables, hold on, let me open. Storage containers is Python, because in my book it is given as Python changes memory locations, variables are not storage. Dear, you know, in case of Python, what happens, things आपका memory में, जो आप memory या फिर आप RAM का बात कर रहे हो या फिर hard disk का, Python के case में heap में store होता है. Okay, whatever you are, you know, like creating, ये सब heap में store होता है. And of course, you're not going to have a array की तरह नहीं है कि इस address पे पहुंच गए and you will get that. It doesn't happen like that. Okay. Basically, मेरा यहाँ पे ये बोलने का मतलब है, means it is going to store something, means you are going to assign something to it. I don't mean कि वो memory में एक जगह reserve करके बैठा हुआ है and you are keeping stuffs. Python heap memory use करता है. Okay? Okay, ma'am. Thank you, ma'am. Most welcome. Okay. So what I was telling, yeah.
Okay, if my students are if my students are absent, okay, I have a condition. So you know what I'll do, I will just complete my assignment. That is what I have, complete my assignment. Now I have मेरे पास बड़े सारे backup plans है. Elif, my web series are also there something, या फिर web series मेरे चल रहे हैं, दूसरा option है मेरे पास में, तो I will watch it. और भी option है Elif, my friends are free, okay, like they are available, my friends are available, so I will just go out with them. Okay, don't mind my handwriting, it's actually good, but यहाँ पे मैं जल्दी जल्दी लिख रही हूँ. Else, मतलब मेरे स्टूडेंट्स भी एब्सेंट हैं. इफ स्टूडेंट्स आर एब्सेंट, मेरा होमवर्क कंप्लीट कर लिया, वेब सीरीज आ रहा है, तो अगर मान लो ये नहीं है, अगर ये कंडीशन सही नहीं है, मतलब बच्चे एब्सेंट है, तो मैंने अपना असाइनमेंट कंप्लीट कर लिया. अगर ऐसा नहीं है तो मैं दूसरा चेक करूंगी. वेब सीरीज ये भी नहीं है, मान लो अगर ये भी नहीं है तो मैं नेक्स्ट पे जाऊंगी. सपोजिंग ये भी नहीं है, तो मैं हर हाल में एल्स वाला चीज करूंगी. एल्स पे सपोजिंग मैंने लिखा गो टू स्लीप. तो व्हाट विल हैपन व्हेन आई हैव मेनी बैकअप प्लान, अगर पहला कंडीशन सेटिस्फाई नहीं हुआ, मैं दूसरे पे जाऊंगी. दूसरा कंडीशन सेटिस्फाई नहीं हुआ, तीसरे पे जाऊंगी. तीसरा भी सेटिस्फाई नहीं हुआ, फोर्थ, फिफ्थ, सिक्स्थ एंड सो ऑन. सबसे लास्ट में इट विल कम टू एल्स. तो आप कभी ऐसा नहीं करोगे इफ लिखा उसके बाद में एल्स लिखा और फिर आप एलिफ 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 लिख रहे हो. डोंट डू दैट. एलिफ इज नथिंग बट एल्स इफ. ओके, सही है. व्हाट इज हैपनिंग, अभी हम ये लिखने वाले हैं. हमारे गेम में वी विल हैव मल्टीपल कंडीशंस, राइट, कि अगर मैंने रॉक निकाला, उसने सिजर निकाल लिया, मैंने रॉक निकाला, उसने पेपर निकाल लिया. इट कैन बी एनीथिंग, मतलब बहुत सारे कंडीशंस होंगे. व्हेन यू हैव मल्टीपल कंडीशंस यू यूज दिस elif. if followed by many elifs and then the else. if है, so after if you will have a condition. elif है, you will have a condition, है ना, because if है condition लगा, अगर you have a condition there. else तो हर हाल में ये नहीं हुआ तो ये करना ही करना है. so that is मतलब it will not have any condition. else लिखकर write the thing, that's it. Okay, I will explain this while writing the code as well. So have a look. What is elif? Elif is nothing but a combination of else followed by if. Now have a look. So how it works? You write if के बाद आपने अपना condition 1 लिखा, and then मतलब अगर ये कंडीशन है, क्या 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 करना है. इट कैन हैपन, जैसे यहाँ पे मैंने बस एक ही एग्जांपल दिया था कि मैं आई फॉरगॉट व्हाट कंडीशन आई गिव, या आई विल कंप्लीट माय असाइनमेंट, मैंने एक ही बोला था. हो सकता है मैं 5-6 काम करूं. सो आई विल राइट ऑल ऑफ देम वन बिलो द अदर हियर. और अगेन वो इंडेंटेशन मेंटेन होगा, इसका मतलब ये इफ ब्लॉक के अंदर लिखा गया है. elif आई हैव द सेकंड कंडीशन, इसके अंदर जितना मैं लिखूंगी that will be a part of that elif. फिर else में ही मैंने कुछ कुछ लिखा है. So here you can see if condition के अंदर I have statement 1, elif में I have statement 2, and else में I have statement 3, and then I have rest of the code. Now have a look. If my condition 1 is true, if my condition 1 is true, which statement will get executed? Statement 1 will get executed. Supposing it happens that कंडीशन 1 इज फॉल्स, तो ये तो चलेगा नहीं, सेकंड वाले पे आएगा. एंड कंडीशन 2 इज ट्रू, तो क्या होगा, स्टेटमेंट 2 चलेगा. ओके, एंड सपोजिंग स्टेटमेंट 1 भी फॉल्स है, सॉरी कंडीशन 1 भी फॉल्स है, कंडीशन 2 भी फॉल्स है, देन मेरा स्टेटमेंट 3 चलेगा. ओके, दैट विल वर्क, जो भी मैंने लिख रखा होगा. नाउ व्हाट अबाउट दिस रेस्ट ऑफ कोड? रेस्ट ऑफ कोड हर हाल में चलेगा. अगर मेरा कंडीशन 1 ट्रू है तो स्टेटमेंट 1 चलेगा एंड द रेस्ट ऑफ द कोड. अगर सपोजिंग मेरा कंडीशन 2 ट्रू है और ये सारे फॉल्स हैं, तो मेरे स्टेटमेंट 2 चलेगा एंड रेस्ट ऑफ द कोड विल वर्क. अगर ये सब फॉल्स है तो मेरा स्टेटमेंट 3 चलेगा एंड रेस्ट ऑफ द कोड. ओके, मतलब जितना देर मैं फ्री थी उतना देर तो मैं जाऊंगी ना, दोस्तों के साथ बाहर चली गई, मूवी देख लिया, या होमवर्क कंप्लीट कर लिया, असाइनमेंट कंप्लीट कर दिया. आफ्टर स्पेसिफिक टाइम मैं अपने प्रॉपर रूटीन दिनचर्या के साथ आई विल कंटिन्यू, राइट, आई व्हाटएवर आई हैव टू डू आई विल डू दैट. सो इतना को छोड़कर अपार्ट फ्रॉम दैट व्हाटएवर द रेस्ट ऑफ द कोड इज दैट विल वर्क एज इट इज. अभी आई विल बी राइटिंग द कोड फॉर दिस. इसमें इफ यू पीपल हैव डाउट यू कैन आस्क मी, दिस इज थोड़ा सा कॉम्प्लेक्स. Anyone? नहीं?
ओके चलो नाउ वी हैव टू कंपेयर, है ना, हमें कंपेयर करना है कि मेरी 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 जो वैल्यू थी या मेरा जो चॉइस था, यूजर का चॉइस सेम है या नहीं है. सो व्हाट आई एम गोइंग टू डू, if I am going to write the condition, so my condition is my choice, if my choice is equal to computer ka choice. Computer ka choice, how am I going to write? C choice, that is the variable that I have written. अगर ऐसा होता है, so tell me what is it? It's a tie, है या नहीं? तो मैं क्या करूंगी, जो मेरा वेरिएबल था टाई, उसमें मैं 1 ऐड कर दूंगी. सो आई एम राइटिंग टाई इज इक्वल टू टाई प्लस 1. आप इसे टाई प्लस इक्वल्स 1 भी लिख सकते हो. ओके और मैं प्रिंट भी कर दूंगी देयर इज अ टाई. ओके दिस इज व्हाट आई हैव डन. माय फर्स्ट कंडीशन, अगर मेरा चॉइस कंप्यूटर का चॉइस सेम है तो टाई में एक इंक्रीज कर दो. इनिशियली आप यहां देख सकते हो टाई की वैल्यू इज 0, so adding 1 to it and I have printed tie. अब हम दूसरे कंडीशन पर आते हैं. what all condition I have? If supposing my choice is equal to, अब देखो मेरा चॉइस क्या है, 1 है. ओके एंड कंप्यूटर का जो चॉइस है that is equal to 2 supposing. Just have a look, 1 क्या था और 2 क्या था. 1 was rock and 2 was paper. Now tell me who will win, rock or paper? Paper will win, yes or no? Yes, ma'am. ओके तो मैं क्या करूंगी, कंप्यूटर विल विन. सो मैं क्या करूंगी, कंप्यूटर के स्कोर में आई एम गोइंग टू ऐड 1. सो कंप्यूटर का स्कोर आई हैव जस्ट सेव्ड दिस एज अ वेरिएबल comp score. Okay so I will write comp score plus equals 1. This is nothing but adding 1 to computer score, that's it. Okay and I will also write computer wins. Something like this. ओके अब मैं इसी को कॉपी करती हूँ और मैं सेकेंड कंडीशन लिखूंगी. अगर मेरा चॉइस 1 है और कंप्यूटर का चॉइस 3 हो गया, आई एम रॉक, कंप्यूटर इज सिजर, सो आई एम गोइंग टू विन. सो यहां पर मैं क्या करूंगी, इट वाज माय स्कोर इफ आई एम नॉट रॉन्ग, या माय स्कोर. सो माय स्कोर प्लस इक्वल्स 1, मैं अपने स्कोर में एक ऐड करूंगी और लिखूंगी आई विन. ओके नाउ अगेन आई विल डू द सेम थिंग. I'll paste it again. Supposing my choice is 2 और computer का choice 1 है. Okay. So my choice is 2. Have a look. I am paper, computer is rock. So of course I am going to win here. Oh, I am going to win. So I'll just write my score here. And I'll write I win. मतलब ये same condition I'm going to write again and again. और क्या condition होगा, ऐसा भी हो सकता है कि it is something like this. My choice is 2, computer की choice is 3. So have a look. 2 and 3, paper and scissor. So जो 3 है वो win करेगा ना, because scissor is going to cut it. So in this way what will happen, computer will win and I'll write computer scores. Okay doing the same thing again. Supposing my choice is equal to 3 और computer का 1 है, so have a look. -3 computer का 1, scissor and rock. So 1 वाले win करेंगे because rock is going to hit it. So rock वाले मतलब computer. So computer का score है मैंने increase किया and I am going to write computer wins. Clear यहाँ तक? And then I have the last condition with me. Supposing my choice is 3, computer का choice is 2. So have a look. -3 computer is 2. -3 computer is 2. Scissor and paper. So scissor is going to 1. So matlab I am going to win here. So I'll keep it my score and I'll write I win. Okay. Done with all the conditions. I hope यहाँ तक clear है. So क्या होगा हर बार जब भी मैंने अपना value, yes dear. Ma'am, can you just show all the different cases? Okay, now it is Different visible. Yeah. तो बेसिकली हो क्या रहा है, जब सेम होगा मैंने उसे अलग कर दिया, अपना चॉइस 1 आपका चॉइस 2, अपना चॉइस 1 आपका चॉइस 3. ओके दिस इज व्हाट वी हैव डन.
Have a look. 1 and 2, 1 and 3. 2 and 1, 2 and 3. सेम को हटा दिया है, बिकॉज अगर मेरा चॉइस कंप्यूटर की चॉइस की इक्वल टाई हो जाएगा, so I need not write the same thing. Okay. -3 computer is 1, -3 computer is 2. So every time what is happening, मैंने अपना चॉइस एंटर कर दिया, कंप्यूटर ने रैंडम लिया, उसके बाद ये इंटायर थिंग चलेगा, इसमें से कोई एक वाली ही लाइक ट्रू हो गई, राइट? यहां तक आई होप इट इज क्लियर. नाउ वी आर गोइंग टू टैली द थिंग्स कि आपका अभी करंट स्कोर क्या है और कंप्यूटर का करंट स्कोर क्या है. सो व्हाट आई विल डू फॉर दैट, okay, so I'm just going to write the print command. मैं एक empty print command leave कर रही हूँ, and I'll just press enter after that, again writing a print command, and here I will specify कि आपका score update क्या है. Your score colon, and here my score is kept in the variable my score, printed that, and also I am going to print computer ka score. Okay, so computer's score, and I'm going to put comp score tha, if I'm not wrong. Yeah. Okay, यहाँ तक it is clear. और tie भी मैं print करूंगी. So I'll print double quotes कि कितने ties हुए हैं. Ties, I think my value is tie only. Done till here. Okay, so देखो ये सारी चीजें मेरे लूप के अंदर है, means this thing will happen 10 times. ये सारी चीजें is there inside, और यहाँ पे मैंने 5 times लिखा है, so this game will work 5 times. तो और this entire thing will happen 5 times. उसने बता दिया कंप्यूटर की स्कोर ये है, आपका स्कोर ये है, all these things. अब ये राउंड तो इंक्रीज होना चाहिए, है ना? राउंड तो अभी 1 से शुरू, राउंड नंबर वाज 1, अब हमें राउंड को इंक्रीज करना, वी हैव टू इंक्रीमेंट दैट. सो एट द एंड व्हाट आई एम गोइंग टू डू, मैं फिर से एक एम्प्टी प्रिंट यूज करूंगी, एंड आई एम जस्ट गोइंग टू राइट राउंड नंबर प्लस इक्वल्स 1, मतलब राउंड नंबर इज इक्वल टू राउंड नंबर प्लस 1. डन. हर बार this thing will happen again and again and again, 5 times ये हो जाएगा. This is how my game will work. 5 times जब हो गया, now what will happen, I will come outside the loop, है ना? I will come outside the loop. So once I come outside the loop, अब मैं फाइनल कंपेयर करूंगी कि फाइनली कंप्यूटर का क्या स्कोर है, मेरा क्या स्कोर है. So what I will be doing for that is, I will be writing print, okay, पहले मैं प्रिंट नहीं करती हूँ, चलो empty print will work, no problem with that. Okay, I will check if my score is more than computer ka score. So who will win? I wins, right? So I'll write print. Congratulations, you won. But मतलब this computer पे ये display होगा that I have won. Okay. ठीक है, डन टिल हियर. ओके, ये तो पहला केस हो गया. नाउ दूसरा केस क्या होगा, इट कैन हैपन, सो आई एम राइटिंग elif, इट कैन हैपन दैट कंप्यूटर का स्कोर इज मोर देन माइन, राइट? सो आई राइट कंप्यूटर का स्कोर इज मोर देन माई स्कोर. Then the same thing will happen, computer wins या computer won, कुछ भी लिखो, computer won. Now else में क्या होगा, जब मैं भी नहीं जीत रही हूँ, कंप्यूटर भी नहीं जीत रहा, इसका मतलब टाई हो रहा है, राइट? सो आई विल राइट टाई, या फिर आई जस्ट प्रिंट एल्स, एंड आई जस्ट प्रिंट देयर इज अ टाई. कोई भी नहीं जीत रहा, हम दोनों के स्कोर्स बराबर है. ओके, इज इट क्लियर टिल हियर? कम ऑन, किसी को Yes, कोई ma'am. डाउट यहां तक? I don't think so. I have missed something. Nothing. Okay. Now what I am going to do, I'm just going to click on run. Okay. So see, have a look. Round 1 got printed, है ना? Why? Because of this line. कहाँ गया? This thing. Round number. Round 1. It is asking rock paper scissors. Enter your choice. Supposing I said 1. देखो ये wait कर रहा था. Input command. It was waiting. वो next line पे नहीं जा रहा है. So
program ka execution has stopped the moment it saw the input block, the input method. Now when I wrote 1, it says computer chose 3, और of course मैं जीतूंगी रॉक और सिजर में I win. Okay, your score is 1, computer का score 0 है, tie 0 है. Now round 2 has started. It is asking again, मुझे menu दे रहा है, enter your choice. I will write 2 this time. Okay, pressing enter. Oh, so what happened? Computer chose 3. So computer is winning. So my score is also 1. Computer का score भी 1 है और tie अभी 0 है. Then round 3. Rock, paper, scissors. It is asking for my choice. I'm going to enter 3 this time. Pressing enter. Okay. So computer का choice 2 था. I win because rock और paper में rock. Yes. Sorry, scissor and paper में scissor is going to win. So I won. Okay. My score is 2. Computer का score is 1. Tie 0. Coming on to round 4 now. So round 4 पे मैं again I'll write 1. हैव अ लुक, दिख रहा है 1 से लेके 3 तक कुछ भी रैंडम इंटीजर कंप्यूटर चूज कर रहा है बिकॉज ऑफ द रैंडम मॉड्यूल. सो हैव अ लुक. अब इस टाइम पे टाई हो गया. माई आई ऑल्सो चोज 1, कंप्यूटर ने भी 1 लिया तो एक टाई हो गया. सो माई स्कोर इज 2, कंप्यूटर का 1 है, टाई 1 है. नाउ आई एम देयर इन द फाइनल राउंड. अभी तक ये लूप के अंदर ही हूँ, सेम चीज बार बार हो रहा है. ओके, सो इट इज आस्किंग फॉर माई चॉइस. दिस टाइम आई एम गोइंग टू राइट 2, प्रेसिंग एंटर. हो, सो हैव अ लुक. माई स्कोर इज 2, कंप्यूटर का स्कोर 1 है, टाई 2 है. सो अभी इसे टाई को तो ये नहीं, माई स्कोर इज मोर देन कंप्यूटर स्कोर, सो आई हैव 1. इज दिस मेकिंग सेंस? कम ऑन, यू पीपल कैन अनम्यूट योर माइक. Yes, ma'am. मतलब यहां तक समझ में आया? Yes, ma'am. Yes, ma'am. It is clear. Yes, ma'am. Okay, great. I just want to ask that do we have time or we have to wrap up? I think we should wrap up. Like, I if think- you want to give the ending. Ma'am, announcement. just before that, for those of us who are making the program along with you simultaneously, can you just show the code from start to finish just once? Yes, ma'am. Yeah, I can. You were doing along with me? So yeah, Yes, ma'am. hold on. Great, great, great. I can just share this. Yes, ma'am, that will be nice. Share this whole PDF also, ma'am. Okay, so I have copied this और यहाँ पे मैं, in the chat box, I'm just sharing it. Okay, just try opening it. I guess that should work. Okay, but don't make any changes because आप जो changes करोगे वो real time पे changes होगा. Okay. I can see most of you people are joining. Now, I just want to take 3-4 more minutes, although I won't be coding anymore, but I just want to add, an extension that I wanted you people to pay attention to. Okay. Now, आप लोगों ने शायद data structures वगैरह पढ़ा होगा या नहीं, I'm not sure about that, but I wanted to make an enhancement to the game. अभी तक हम क्या कर रहे हैं, 1 2 3 एंटर कर रहे हैं. इट्स सो कंफ्यूजिंग, मुझे बार बार ऊपर जाना पड़ रहा था, रॉक पेपर सीजर देखना पड़ रहा था. अच्छा 1 and 3 में हो रहा है. वी वर यूजिंग नंबर्स, बट इफ आई यूज डिक्शनरी व्हाट विल हैपन, मैं सिंपली रॉक लिखूं, पेपर लिखूं, सीजर लिखूं, दैट विल वर्क. ओके, या इनफैक्ट मैं 1 2 3 भी लिखूंगी ना, बट इट विल टेक द नेम. आई विल शो यू हाउ. सो dictionary, जैसे we have it Oxford dictionary and all. Similarly in Python we have data structure, that is a dictionary. Like we have many sets, tuples, list, ये सब dictionary, ये सब data structure है. Means आप data को कैसे organize कर रहे हो. One second, मैंने screen share नहीं किया है. Hold on. Okay, I have just shared my screen. Okay, so what happens, एक dictionary में क्या होता है, जैसे supposing I have a dictionary like what does awful mean. अगर मैं इंग्लिश की डिक्शनरी ओपन करूं, सो इट विल से ऑफुल मींस समथिंग वेरी बैड, राइट. तो अगर मुझे डिक्शनरी में ऑफुल ढूंढना है, मैं वेरी बैड से नहीं ढूंढूंगी, मैं इससे सर्च करूंगी ए एंड देन AWFUL ऑफुल. ओके, इट मींस वेरी बैड. दिस इज व्हाट आई एम गोइंग टू डू.
एंड आई सेड पाइथन और इंग्लिश में बहुत सारी सिमिलैरिटीज है, मतलब रियल लाइफ से बहुत सिमिलैरिटीज है. सो हैव अ लुक. पाइथन के केस में व्हेन आई टॉक अबाउट द डिक्शनरी डेटा स्ट्रक्चर, you know, like recently I think मैं Nagaro का I was giving that technical round. Okay, so उसमें भी like dictionaries were asked. I hope you people are aware of that. Nagaro, we have a company. Okay, इनमें पूछा गया था. Then you have Amdocs. Okay, Amdocs is again a company. I think it is Israel-based company. So again, you know, there also वो लोग उन लोगों ने भी मुझसे dictionary पूछा था. Okay, that like technical round where I had actually 41 questions and you had to attempt all. Okay, out of which 39 were MCQs and 2 were where you had to write the code. Okay, so मतलब ये नहीं बेसिक चीजें हैं हम भूल जाए या फिर ये बहुत बेसिक है करके, they ask it और उस टाइम पे आप भूल जाते हो. So what happens यहाँ पर, in case of Python, what happens, this is the key and this is the value. So in case of Python, when we are creating dictionary, we have a key value pair. और अगर आपको मीनिंग ढूंढना है, वैल्यू सर्च करना है, आप की के हेल्प से सर्च करोगे. रियल लाइफ में भी यही करते हैं. अच्छा, ऐसा हो सकता है क्या डिक्शनरी में 2 बार ऑफुल लिखा हो, पेज नंबर 5 पे भी ऑफुल लिखा हो, पेज नंबर 16 पे भी ऑफुल लिखा है? कैन इट हैपन? इट कैन नॉट हैपन, है ना. सो पाइथन के केस में जब डिक्शनरी बना रहे हो, आप की को रिपीट नहीं कर सकते. यू कैन नॉट हैव डुप्लीकेट कीज. ओके, एंड वैल्यूज आर एक्सेस्ड यूजिंग द की. और आप एक बार की बना दिया, आप की को चेंज नहीं कर सकते हो, आप वैल्यू चेंज कर सकते हो. लाइक वेरी बैड है, मैं इसे वेरी अनप्लेजेंट कर दूं या एक्सट्रीमली अनप्लेजेंट कर दूं, समथिंग डिसप्लीजिंग कर दूं, मैं कुछ भी ऐसा लिख दूं. राइट, आई कैन चेंज द वैल्यू बट आई कैन नॉट चेंज द की. सो वैल्यूज आप चाहो तो उसे म्यूटेबल रखो या इम्यूटेबल. म्यूटेबल मीन्स दे कैन बी चेंज्ड and immutable means they cannot be changed. So when I talk about the key, keys are immutable, you cannot change them. और values आप पे डिपेंड करता है, आपको उसे चेंज करना है करिए, नहीं करना है नहीं करिए. So values can be mutable or immutable, but आपका जो key होगा, it's always going to be immutable, you cannot change it. How to make a dictionary? Bas, this is the last slide. So see, again, I have given a name of the dictionary, my game dict, assignment operator, and then we have the curly braces. अब इसमें मैं हर एंट्री को मैंने लिख रखा है. चेस लिखा तो एंट्री लिखा, वॉट एवर योर एंट्री इज. आई नीड टू चूज अ डिफरेंट कलर. या मैंने एंट्री लिखा, वॉट एवर माई की इज. आई शुड बेसिकली राइट, या वॉट एवर माई की इज. की लिखने के बाद यू आर गोइंग टू पुट कॉलन, यू आर गोइंग टू राइट वैल्यू. ओके, ये मेरा पहला एंट्री हो गया. जैसे चेस क्या होता है, तो एन इंडोर गेम जिसमें 2 लोग खेल रहे होते हैं चेकर बोर्ड पे. अब मुझे दूसरा भी एंट्री करना है. सो गिव अ कॉमा, राइट द नेक्स्ट की, पुट अ कॉलन, राइट द नेक्स्ट वैल्यू. अगेन गिव अ कॉमा, राइट द नेक्स्ट की, नेक्स्ट वैल्यू. ओके, और अगर आपका की एक स्ट्रिंग है, कीप इट इनसाइड डबल कोट्स. वैल्यू आपका स्ट्रिंग है, डबल कोट्स में रखो. ये आपका कॉमन सेंस बताएगा. ठीक है, एंड ये इंटायर थिंग किसमें है, इट इज देयर इनसाइड ब्रेसेस. बन गया. ओके, नाउ इफ यू वांट टू एक्सेस इट, ओके, अगर आपको एक्सेस करना है कि क्रिकेट क्या होता है, क्रिकेट का क्या मीनिंग, आई डोंट नो, तो मैं क्या करूंगी, अगर मैं नॉर्मली क्या बोलूंगी, डिक्शनरी खोलो, क्रिकेट ढूंढो, मीनिंग मिल जाएगा. राइट, यहाँ पे मुझे यही बोलना है. मैं क्या बोलूंगी, गो टू my game dict. I think I'm writing at the wrong place. Go to my game dict. Okay, और मैं की का नाम लिखूंगी cricket. So what will happen, वो my game dict पर आएगा, डिक्शनरी पे आया, वो की में सर्च करेगा क्रिकेट, क्रिकेट, हाँ क्रिकेट मिल गया. अब ये इसका वैल्यू प्रिंट कर देगा. समझ में आ रहा है what is happening? दिस इज हाउ इट विल वर्क. तो क्या होता है, जैसे एरे होता है ना हमारा, सीक्वेंस में होता है, आपका लिंक लिस्ट होता है, वो सीक्वेंस में नहीं होता है. सिमिलरली आपका जो ये डिक्शनरी है, ये सीक्वेंस वीक्वेंस में नहीं होता है. इसमें आप ऐसे नहीं कि मैं इंडेक्सिंग से मैं करूंगी, माई गेम डिक्ट के सेकंड इंडेक्स पे जो है वो प्रिंट कर दो. आपको कैसे पता डिक्शनरी में कौन चीज किस इंडेक्स पे, यू हैव नो आइडिया अबाउट दैट. आपको बस की पता है. तो डिक्शनरी में व्हेन यू आर एक्सेसिंग अ वैल्यू, you use
keys to access the value. Dictionary का नाम, square brackets, write the name of the key. That's it. I hope it's making sense. है ना? So if you people can allow me, okay, hold on. I'll do one thing. In the same project, those who have done, you can just make a small change, or even if you don't want to make a change, don't make it. Just observe the change. Okay. So for that, I'll have to share my entire screen. Stop presenting. Is my entire screen visible? I think it is. Someone please unmute your mic and tell me yes or no. Yes, ma'am. Yes, ma'am. Okay, it is. ठीक है, great. तो देखो what changes I wanted to make. So have a look. What I have done here, import random. Okay, I have taken the color white. Blue. Okay, so round number 1 था, ठीक है. What I have done, मैंने एक डिक्शनरी क्रिएट किया ऑप्शंस का. तो डिक्शनरी ऑप्शंस लिखा. The key value is rock. एक एलिमेंट हो गया, कॉमा दिया. Second key, the value is paper, comma. Third key, the value is scissor. Done. तो मैंने एक डिक्शनरी बना लिया. So what happens? Everything is same. My score is 0. Computer का score भी 0 है. Tie भी 0 है. Everything is same. While round number is less than equal to 10. ये भी same है. ये भी same है. Everything is same. ये सब चीज same है. बस changes कहाँ पर आए हैं? जब मैंने यूजर से पूछा अपना चॉइस एंटर करो. Enter your choice between 1 and 3. उसके बाद मैंने क्या किया, यूजर का चॉइस एंटर किया. यू चोज, मतलब 1 आ रहा है, अजीब लग रहा है ना, 1 क्या था 2 क्या था. तो यू चोज, मैंने बोला ऑप्शंस में जाओ. सपोजिंग मैंने 1 चूज किया है, ऑप्शंस में जाओ, माई चॉइस, सो रॉक. सो इट विल कम यू चोज रॉक. ओके, दिस इज हाउ यू एक्सेस. ऑप्शंस में गए, आपके पास में की है, मेरी की वैल्यू 1 है. ओके, सो 1 मतलब रॉक, तो यू चोज रॉक. सिमिलरली बस ये एक लाइन इज एडिशन. एंड ऑल्सो कंप्यूटर के चॉइस में हमने इतना ही किया था, कंप्यूटर चोज 1 लिख दिया था. 1 and 2 were very confusing. So rather than writing computer chose 1, you can just write go to the dictionary options, computer choice. तो 1 जो भी है, 1 क्या है, rock. So it will say computer chose rock. अब आपको इजी होगा, मैंने भी रॉक लिया, कंप्यूटर भी रॉक लिया, हाँ ये टाई हो गया. ओके, rather than मैंने 1 लिया, कंप्यूटर ने 1 लिया, अच्छा ये टाई हो गया. Is it making sense? This was just the addition that I wanted you people to make. That's it. Okay. Now, you know, beyond this, ऐसा नहीं है कि यहाँ पर it is done or Python is completed. It's actually a vast thing. Okay. और काफी मेहनत करना पड़ता है. So, but ये है कि you understand it quite easily. And I have been teaching kids, I think since 2020 July. Okay, like programming. Apart from this, I have been teaching English, so that is something different. English and English grammar. But talking about Python and HTML, CSS, JavaScript, that's what I'm teaching. Or it has been, more than a year. Yeah, 1.3 months something, 1.3 years something. So in पूरे time पे I have seen children वो basic से शुरू कर रहे हैं and they are learning quite a lot. So मैं यहाँ पे प्रचार करने के लिए नहीं आई हूँ. I really don't want. I am just like you people, okay? So what I want is, like, you can refer Geek for Geeks, my favorite place. Refer that, मतलब you will get everything from interview से लेकर each and everything. Refer that. सबसे important चीज है. Use Geek for Geeks और काफी easy terms में है उनका. Apart from this, you can use, Code Camp. Have you heard about this? Are you people aware? I don't know you people are aware or not. Okay. Yes, you ma'am. have that camp code something. Did I forget the name? Can anyone tell me the name? Free Code Camp. Free Code Camp. Yeah, great. Who was that?
Free code camp, great. Okay, so you can even use that to, like, they even give you free certifications and you have ample of things to learn, so you can do that. Okay, so all the best. If you have any questions or feedbacks, definitely Ifra has shared a form, please fill that. Okay, it was a pleasure teaching you all. Thank you so much. Thank you, Ifra. Handing over to you. Yeah, Thank you, ma'am. thank you so much, ma'am. I would like to call JV for the Javeria Sajid for the vote of thanks. Hello, am I audible? Yeah, you are audible. Okay. So, hello and Assalamu alaikum. This is Javeria Sajid, Joint Secretary of IEEE Student Branch AMU. I am truly honored to deliver a vote of thanks for today's amazing session on the behalf of our whole team. First of all, I would like to thank Bushra ma'am for sparing her valuable time and enlightening us with her thoughts and experiences. It's so great to have you here, ma'am. We all learned so much today in a real fun way. Personally, ma'am, this weekend morning has amounted to an informative one rather than sleeping till noon. Your style of explaining and giving examples has been my favorite. Again, thank you so much, ma'am. I hope we will be connected in the future too, inshallah. And I would like to thank our patient and sincere audience for joining us today. I hope you guys have gained a lot from this session. And lastly, a big shout out to the IEEE Student Branch AMU for conducting such great sessions. Thank you, everyone. Thank you, ma'am. I think we can wrap up this session. Yeah. Wait. Okay. Javeria, can you share the memento? Wait. Excuse me. Yeah. Can I have the whole PPT which have ma'am taught us? You can share with the Faizan. I will I will take with him later. Yeah, Bushra ma'am responded. We'll share. Okay, thank you. And don't forget to fill the feedback forms. It will provide you with certificates and it will help ma'am definitely. I will. Faizan, can you share the memento? Accept this virtual memento from our side, ma'am. Thank you for such an amazing workshop. We really hope to have other sessions with you as well. Thank you. Thank you so much. Thanks a lot. Okay, I think we can wrap up this session. Thank you everyone for all the patience and for joining us. You can also visit our IEEE pages and look for other events. We have a really exciting week planned for all of you. So don't forget to join us.